Hello everyone, welcome to another episode of Legal Update. The topic of discussion is right to free and fair trial. First, let us see why it's in the news. Recently in the Narendra Kumar Soni vs. State of Rajasthan case, the Rajasthan High Court has held that the right of an accused to a free and fair trial under Article 21 in seeking call or tower location details under Section 91 of the Code of Criminal Procedure 1973 would prevail over the right to privacy of the police officials. Let's look at the background of the case. The petitioner accused in an anti-corruption case claims false implication with no actual trap proceedings on 10th March 2023. He argues that CCTV shows only 3 people present, himself, the complainant's brother, and an unknown person contradicting witness claims. He filed an application under Section 91 of the CRPC to preserve mobile tower locations of the complainant, the investigating officer, 2 witnesses, and other trap party members. The trial court in Kota partially granted the request, preserving mobile locations for the complainant and the investigating officer, but denied it for the witnesses and other trap party members. He has appealed to the Rajasthan High Court, specifically seeking mobile tower locations for witnesses. The court observation was as follows. The bench of Justice Anup Kumar Dhand emphasized that principles of natural justice and the right to a fair trial under Article 21 of the Constitution override privacy concerns, especially when access to evidence such as call details and electronic records can help uncover the truth and ensure justice. The court highlighted the admissibility of electronic records in criminal trials under Section 65A and 65B of the Indian Evidence Act and stressed the importance of Section 91 of the CRPC in securing evidence necessary for a fair trial, including preserving call details and tower location data to prevent miscarriage of justice. It was affirmed that while some privacy breaches may occur, these are justifiable if they aid in discovering the truth and rendering justice, particularly when the accused defense depends on such evidence. Let's know more about right to fair trial. Fair trials uphold justice and ensure social integrity. Without them, wrongful convictions occur, eroding trust in the justice system. Governments must uphold law and order while respecting civil liberties. Article 20, Clause 2 of the Constitution states that no one can be prosecuted and punished for the same offence more than once. Section 300, subsection 1 of CRPC or the Section 337 of BNSS grants the right to a person who has been tried by a court of a competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence. Section 243 of CRPC or the Section 266 of BNSS provides for the right to defend oneself. Let's now discuss some case laws related to it. Zahira Habibullah Sheikh and others was the state of Gujarat 2006. The Supreme Court emphasizes fair treatment for both accused and victims, highlighting the intrinsic right to fairness in criminal trials. Himanshu Singh Sabharwa was the state of MP Others 2008. Courts wield authority under relevant legal provisions to ensure fair trial, intervening when due process is compromised. Before we wrap up, here's a question for you. What does Article 20, Clause 2 of the Constitution guarantee? Right to self-defense, protection against double jeopardy, right to legal aid, or protection against wrongful arrest? Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. नमस्कार, लीगल अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। सबसे पहले जान लेते हैं यह चर्चा में क्यों है। नरेंद्र कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 के तहत कॉल या टावर लोकेशन का विवरण मांगने में अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अभियुक्त का अधिकार पुलिस अधिकारियों के गोपनीयता के अधिकार पर प्रबल होगा। चलिए जान लेते हैं मामले की पृष्ठभूमि। भ्रष्टाचार विरोधी मामले में आरोपी याचिकाकर्ता ने 10 मार्च 2023 को कोई वास्तविक ट्रैप कार्यवाही न होने के बावजूद झूठे आरोप लगाने का दावा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि सीसीटीवी में केवल 3 लोग ही मौजूद दिखाई दे रहे हैं, वह स्वयं, शिकायतकर्ता का भाई और एक अज्ञात व्यक्ति जो गवाहों के दावों का खंडन करता है।
उन्होंने शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी, 2 गवाहों और अन्य ट्रैप पार्टी सदस्यों के मोबाइल टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने के लिए सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आवेदन दायर किया। कोटा की ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी के मोबाइल लोकेशन को सुरक्षित रखते हुए आंशिक रूप से अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन गवाहों और ट्रैप पार्टी के अन्य सदस्यों के लिए इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की है, जिसमें विशेष रूप से गवाहों के लिए मोबाइल टावर लोकेशन की मांग की गई है। न्यायालय की टिप्पणी की बात करें तो न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर हावी है, खासकर तब जब कॉल विवरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे साक्ष्य तक पहुंच सच्चाई को उजागर करने और न्याय सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A और 65B के तहत आपराधिक मुकदमों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर प्रकाश डाला और निष्पक्ष सुनवाई के लिए आवश्यक साक्ष्य हासिल करने में सीआरपीसी की धारा 91 के महत्व पर बल दिया, जिसमें न्याय में चूक को रोकने के लिए कॉल विवरण और टावर लोकेशन डेटा को संरक्षित करना भी शामिल है। इस बात पर जोर दिया गया कि यद्यपि कुछ गोपनीयता को उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यदि इनसे सत्य का पता लगाने और न्याय दिलाने में सहायता मिलती है तो ये न्यायोचित हैं, विशेषकर तब जब अभियुक्त का बचाव ऐसे साक्ष्य पर निर्भर करता हो। आइए अब जान लेते हैं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई न्याय को बनाए रखती है और सामाजिक अखंडता सुनिश्चित करती है। इसके बिना गलत दोष सिद्धि होती है, जिससे न्याय प्रणाली में भरोसा खत्म हो जाता है। सरकारों को नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 20 खंड 2 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और उसे दंडित नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की धारा 300 उपधारा 1 या बीएनएसएस की धारा 337 किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है जिस पर एक बार किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा चुका हो और उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी किया गया हो। सीआरपीसी की धारा 243 या बीएनएसएस की धारा 266 आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। चलिए अब जान लेते हैं इससे संबंधित केस के बारे में। जाहिरा हबीबुल्ला शेख और अन्य बनाम गुजरात राज्य 2006। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मुकदमों में निष्पक्षता के अंतर्निहित अधिकार पर प्रकाश डालते हुए अभियुक्तों और पीड़ितों दोनों के लिए निष्पक्ष व्यवहार पर जोर दिया है। हिमांशु सिंह सभरवा बनाम मध्य प्रदेश राज्य अन्य 2008। न्यायालयों को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकार प्राप्त है तथा जब उचित प्रक्रिया से समझौता किया जाता है तो वे हस्तक्षेप करते हैं। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। संविधान का अनुच्छेद 20 खंड 2 क्या गारंटी देता है? आत्मरक्षा का अधिकार, दोहरे खतरे से सुरक्षा, कानूनी सहायता का अधिकार या गलत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।